Once again, welcome to all of you. Today, I'm going to discuss about a great poem and composed by a great poet, just like a usual time, as I say to all of you, Mr. Robert Frost. Now, in this poem, the poet wants to say about a depression, a separation, a comparison between fire and ice. Now, here we can say, in other words, the fire means readiness, and the other ones, hate is means hate. Ice means hate, and fire means readiness. So all the people which belongs to in our society. Now, in this poem, the poet wants to say there will be destroyed all types of creatures, all types of world, and now it will be changed. It will be destroyed by two things. The first one is greediness, and other one is hate. The whole world will be destroyed. But hate is the greater than fire, because fire, probably we can see normally, the fire will be destroyed. Normally all types of things will be destroyed, will be fired. But in other words, we can say the hate is very powerful in spite of fire. And once again, I repeat, fire and ice are the two things which have to destroy to all types of world, all types creatures which belongs to in our earth or our space. Now, in this poem, Mr. Robert Frost, I would like to say, once again I repeat, in this poem, Robert Frost wants to say that this world, this area will be destroyed by two things, fire and also ice. The fire means greediness, and other ones if hate means hate, नफरत. शॉर्ट समरी क्या है, इसको पहले कवर करने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस पोएम में कवि ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. पहला तो फायर और दूसरा उन्होंने आइस के बारे में डिस्कस किया है. तो यहाँ फायर का मतलब केवल आग से बिल्कुल ना समझें, और यहाँ पे हेट आइस का मतलब केवल आप बर्फ ना समझें. यहाँ फायर का मतलब होता है ग्रीडनेस, यानी लालच से, और जो दूसरा वर्ड है जिसको हम आइस कह सकते हैं वो हेट है, नफरत है. जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इस संसार को दो तरीके से समाप्त किया जा सकता है. पहला लालच से और दूसरा नफरत से. लेकिन पोएट ये बताना चाहते हैं कि इस संसार को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, तो नफरत एक ऐसी चीज़ है जो आग की अपेक्षा, ग्रीडनेस की अपेक्षा, लालच के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा नुकसान कर सकती है और पूरी तरीके से ऑल टाइप्स ऑफ विल बी डिस्ट्रॉयड, ख़त्म कर सकती है वो. बिकॉज इट हैज़ ए ग्रेट पावर हाउ टू डिस्ट्रॉय आवर कंट्री, हाउ टू डिस्ट्रॉय पीपल, हाउ टू डिस्ट्रॉय आवर सोसाइटी. किस तरीके से इसको नष्ट किया था, बर्बाद किया जा सकता है. So without wasting our time, let's talk our topic, start our stanza. The first stanza is सम से. अगर जिसके पास बुक्स ना हो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पूरे लाइन मैंने कवर किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो क्या क्या उसमें डिस्कस किया जा रहा है. ओके, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, आप इसको देख सकते हैं. अगर आपके किताब नहीं है, लेकिन अगर आपका किताब भी नहीं तो आप उसको जल्दी से परचेज कर लें. ओके. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tested for desire, I hold with those who favor of fire. Once again I repeat, some say the world will end in fire, some say in ice. Now in this line, the poet wants to say the world will be destroyed, because somebody says the world will be destroyed by one thing, and one thing is fire. Because evenly we can say, some people say the world will be destroyed by fire, and some people say the world will be destroyed by hate.
कुछ लोग बताते हैं कि संसार को आग से भी बर्बाद किया जा सकता है, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि संसार को संसार को नफरत से भी बर्बाद किया जा सकता है। ये दो चीजें हैं, ठीक है। सबसे नाइस, कुछ लोग भी बताते हैं कि संसार को आइस हेट या नफरत से, संसार को नफरत से भी बर्बाद किया जा सकता है। तो लाइन का मतलब ये है कि कुछ लोग ये बताते हैं कि इस संसार को आग से भी फिनिश किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और कुछ लोग यही बताते हैं कि संसार को नफरत से भी बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन बताना चाहता पोएट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं इन सभी इच्छाओं को बारे में टेस्ट ले चुका हूँ। नाउ दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से आई हैव टेस्टेड ऑलरेडी विद द टेस्ट ऑफ द फायर, यानी यहाँ पोएट ये बताना चाहता है कि मैं ऑलरेडी टेस्ट ले चुका हूँ, स्वाद चख चुका हूँ। जो इच्छा को, लालच के बारे में बताना चाहते हैं, मैं उस लालच के बारे में एनालिसिस कर चुका हूँ, जान चुका हूँ कि संसार को बर्बाद किया जा सकता है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर ऑफ फायर, और मैं कह रहा है यानी वो फेवर में भी है, उस होल्ड को पकड़े हुए, कस्टम को उन्होंने पकड़ा हुआ है। दोज पीपुल्स बिलीव्स इन फायर ही ऑल्सो फेवर देम, वो उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, फेवर में है, उनके साथ में है। ऐसे लोग जो फायर को मान चुके हैं कि इस दुनिया को, इस संसार को फायर से भी ख़त्म किया जा सकता है, तो पोएट उनके साथ भी समर्थन करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे लोग भी जो फायर का समर्थन करते हैं, फेवर में है, मैं भी उनके समर्थन में हूँ, और इस संसार को आग से भी ख़त्म किया जा सकता है। आई होप फर्स्ट स्टैंडर्ड इज कंप्लीटेड, सेकेंड वन इज but if it had to perish twice, now it had, but if it had to perish twice, बस इस संसार को मतलब ट्वाइस को मतलब दोहरा या दो तरीके से, एज यूजुअल टाइम जैसे बता चुका हूँ कि संसार को दो तरीके से बर्बाद किया जा सकता है, फायर से और हेट से। तो यही बताना चाहते हैं कि संसार को दो तरीके से फिनिश किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, लेकिन इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से द हेट इज बेटर देन द फायर, the world will be destroyed by hate and how hate is very greater, very powerful in spite of fire। मतलब नफरत जो होता है वो आग से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वही बता रहा है कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट, कि हेट जो है, नफरत जो है, वो काफी पावरफुल होती है ग्रीडी की अपेक्षा, आई मीन फायर के अकॉर्डिंग। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, एंड नाउ टू से ये बताना क्या, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन हैजार्ड, आपदा या परेशानी या तबाही। तो कह रहा है क्या, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, नाउ आइस इज वेरी ग्रेट देन इन स्पाइट ऑफ द फायर, यानी आग की अपेक्षा, फायर की अपेक्षा आइस एक ऐसी चीज है जिसको संसार को आग से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन अदर वर्ड वी कैन से हेट, नफरत, घृणा। अगर आप किसी को घृणा से देखते हो तो वो आदमी तड़प तड़प के मरेगा। आग से जलाते तो एक तरह से कह सकते कि पूरी कायाकल्प उसकी बदल जाती है, लेकिन अगर किसी को नफरत से निगाहों से देखा जाए, किसी को हेट से देखा जाए, तो नफरत एक ऐसी चीज है जिसको जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो परेशान रहेगा। आग तो नॉर्मली इसको खत्म कर देगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। लेकिन हेट, नफरत, ईर्ष्या ऐसी चीज है जो कंटिन्यू चलती रहती है और वो हमेशा छोटे छोटे करके ही बर्बाद होता चला जाएगा। नाउ and war and would suffice, and now the hate is very sufficient for them, बहुत ही पर्याप्त है। इस संसार को बर्बाद करना हो तो आग से अपेक्षा हेट काफी सफिशियंट है, पर्याप्त है इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने में। आई होप द ऑल लाइन्स क्लियर्ड, एंड आई होप एनी एक्सक्यूजेस यू हैव, एनी क्वेश्चन यू हैव, प्लीज राइट द कमेंट्स इन द गिवन द बॉक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फायर एंड आइस।